Hello, good evening, everybody. Good evening. Hi, everybody. Good evening. Hello, good evening. Hello, Manish. Hello, Vishal. Hi, Ashish. Nice to see all of you once again. Yes, hello, Ashish. Triveni, good evening. Hello, Rajiv. Yunus Ali, how are you? Good evening, Parth. Hello, Ninad, Mukesh. Great, nice to see all of you. Warm welcome to day 14. We'll just wait for 2 minutes. I think I connected a little early, so we can wait for 2 minutes. Hello, Vipin, Kavita, Jayashri ji, good evening. Vinuta, good evening, Vinuta. Yes, hello, Kavita. Abdul Salam ji, how are you? Amit, Padma ji, Vinuta, good evening. Hi, Vishal. Can anybody confirm whether you can see me and hear me clearly? Can you see me and hear me clearly, please? Hi, Bina. If somebody can confirm whether you can see me. Hello, Shilpa, Triveni. Thank you, Triveni. Thank you for confirming. Great. We'll just wait for another 1 minute, 1 or 2 minutes. कैसे हैं सब आप लोग? How is everybody doing? So while we are waiting on other people, अपना एक्सपीरियंस थोड़ा शेयर करिए. कैसा लग रहा है आपको? Yes, thank you, Kavita. How is everybody feeling this evening? Hi, Sneh. Karthik. Thank you so much for everybody joining in. Yes, Pandurang ji, thank you so much for confirming. Triveni says very positive feeling. Very good, Ishwar. Thank you for confirming. Hello, Ramesh. Shilpi says feeling blessed. Somebody is saying you look more energetic and vibrant. Thank you. Deepak says feeling wonderful. Deepak ji says feeling wonderful. Yes, Ramesh, glad to be here with you too. Ritu ji, good evening. Okay, faith factor is enhanced. That is what Beena is saying.
Great. It's been such an amazing journey. Pooja ji says, I'm so happy without any reason. क्या बात है, in spite of the breakdowns. Kavita says, we shall overcome. Yes, absolutely, Kavita. Deepak is saying, miracles are happening. Very nice. That is what happens when your mind is in the right place. You start seeing all the amazing things around you. कितनी भी मुश्किलें हो, कितनी भी परेशानी हो, लेकिन हमारा मन अगर सही जगह पे है तो हमें दुनिया में सारी अच्छी चीज़ें दिखने लगती है. अदरवाइज़ हमारा माइंड हमेशा उस चीज़ को ढूंढता है जो अच्छा नहीं है. तो कोई भी परिस्थिति है उसमें हम कुछ ना कुछ तो अच्छा ही ढूंढ सकते हैं. राइट. रिमेंबर द फर्स्ट सक्सेस प्रिंसिपल वी लर्नड, look for goodness in every situation. That doesn't mean that we should ignore the challenges. इसके लिए हमें precautions लेने हैं, ध्यान रखना है, घर पे रहना है, अपने आप का ध्यान देना है. हेलो रजनी, गुड इवनिंग. जब मैं कहता हूँ पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव के ऊपर ध्यान दो, इसका मतलब कहीं पे भी ये नहीं है कि we need to ignore what's going on. I'm never saying that you should ignore and you should be only happy. No. What I'm saying is that in any situation, if you keep your mind calm and peaceful, you're able to find solutions in any situation and you can also use the time effectively. अगर हमारा माइंड ठीक नहीं है तो ये समय जो अभी हमें मिला है, कितने सालों के बाद इतना समय मिला है, तो इस समय भी हम वेस्ट कर देंगे. बिकॉज माइंड काम नहीं करेगा तो कुछ नहीं होगा. तो कहने का मतलब ये है कि while you are taking care of the challenges which we are faced with, how are we going to take care of the challenges? Take all the precautions. Be at home, stay safe, eat the right foods, build your immunity, do all of that so that you can stay safe in this situation. But what about using this time effectively? This can be done only when your mind is absolutely calm and peaceful. Right? So Jayashri ji says a lot of vaccines and medicines are being developed and being discovered. That's great news. It is bound to happen. It's just a matter of spending this time in between. Okay, wonderful. So I think we have enough people and we can begin. So हमने कुछ दिनों में we've covered a lot of success principles. उसमें से some of the very important success principles were taking 100% responsibility for your life. Okay, always be in the student mode. Always look for goodness in every situation. Strive for being in the top 10% in the world. Okay, we learned a lot of good principles of success. कल हमने एक बहुत ही important topic को discuss किया and that is understanding the purpose of life. हम यहाँ पे क्यों हैं, इस planet पे क्यों आए? Why has God sent us here? There is always a reason why God creates anything. So if everything in this universe is created for a reason, then we are also created for a reason. God has not sent us here for time pass. जा बेटा 70-80 साल जा, मस्ती कर ले और वापस आ जा. God has not sent us, any of us, for doing that. So whenever He created anybody, there was always a purpose, always a reason. So all we need to do is figure out that purpose. That what am I made for? What am I supposed to do while I am on this planet? हमें क्या चीज़ यहाँ से करके जाना है. ओके, तो जैसे मैंने डिस्कवर किया कि मैं एक टीचर हूँ, तो जब से मैंने टीचिंग करना शुरू किया तो मेरी ज़िंदगी बदल गई. क्योंकि आई डोंट फील वर्क इज़ वर्क एनी मोर. काम ही नहीं लगता. जितना ज़्यादा काम करता हूँ तो मुझे ऐसे लगता है जैसे मैं वेकेशन पे हूँ. सो आई डोंट फील टायर्ड व्हेन आई एम डूइंग माई वर्क. इनफैक्ट मैं अगर काम नहीं करता हूँ तो ज़्यादा थकान होती है. ओके, इसलिए अपने जीवन के मकसद को जानना बहुत ज़रूरी है. राइट. तो आज हम और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ सक्सेस को कवर करने वाले हैं एंड दैट इज़ डिसाइड व्हाट यू वांट. देखो, हम सबके अंदर एक बहुत ही अनंत शक्ति है, अनलिमिटेड पावर है, जिसको हमने क्या नाम दिया था? सबकॉन्शियस माइंड. सबकॉन्शियस माइंड का दूसरा नाम क्या था? जीनी. और उसका तीसरा नाम क्या था? ज़मीन. राइट. द सबकॉन्शियस माइंड इज़ लाइक अ पीस ऑफ लैंड.
इस ज़मीन में हम जो भी बोएंगे वो हमें मिलेगा, राइट? तो हमने कहा था, इफ़ यू रिमेंबर इन सेशन 2 और 3 और 4, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट सेशन, बट हमने कहा था कि ज़मीन में हम बीज 5 तरीके से बोते हैं. हाउ डू यू सो द सीड इन द ग्राउंड? जो हम सोचते हैं, जो हम देखते हैं, अपने माइंड में जो पिक्चर्स देखते हैं, जो हम बोलते हैं, जो हम महसूस करते हैं, और जो हम एक्शंस लेते हैं. सो द 5 ways in which you install seeds in the subconscious mind: your thoughts, words, images, feelings and actions. ये 5 तरीके से हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में वी आर इंस्टॉलिंग सीड्स, राइट? नाउ ज़मीन हम सबके अंदर है, जीनी भी हमारे अंदर है, सबकॉन्शियस माइंड भी अंदर है, लेकिन अगर हमें यही नहीं पता हमें क्या चाहिए तो उसको बताएंगे क्या? अब जीनी अंदर बैठ रहा है, राह देख रहा है कि आपको क्या चाहिए, पूछ रहा है आपको क्या चाहिए, और हम थोड़े कंफ्यूज है कि मुझे पता ही नहीं मुझे क्या चाहिए. और या तो अगर हमें टोटल कन्फ्यूजन है, एक दिन हम कहते हैं मुझे अहमदाबाद जाना है, तो जीनी क्या करेगा? आपको मदद करते हुए अहमदाबाद लेके चलेगा. बीच में ही आके आप कहोगे नहीं नहीं नहीं, कलकत्ता नहीं जाना है, अहमदाबाद नहीं जाना है, मुझे कोलकाता जाना है, तो बेचारा घूमेगा, फिर आपको कोलकाता के और लेके जाएगा. फिर आप बोलेंगे नहीं नहीं कोलकाता नहीं जाना है, मुझे दिल्ली जाना है, तो जीनी तो बेचारा इधर उधर भागते रहेगा और कभी भी कुछ हासिल नहीं होगा. तो इसलिए अगर हमें अपने जीवन में कुछ हासिल करना है तो सबसे पहले वी हैव टू बी वेरी वेरी क्लियर ऑफ व्हाट वी वांट इन अ लाइफ, टू डिसाइड एब्सोल्यूट विद एब्सोल्यूट क्लैरिटी व्हाट इज इट दैट यू वांट इन योर लाइफ. बिकॉज देखो, हमारा माइंड जो है एक ट्रांसमीटर की तरह है. जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि आपके माइंड में जो भी आप सोच रहे हो एक वाइब्रेशन के रूप में बाहर जा रहा है, और वो वाइब्रेशन की एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती है. तो जैसे एक रेडियो ट्यूनर होता है, ट्यूनर, उसको अगर आप 98.3 पे ट्यून करोगे तो रेडियो मिर्ची पकड़ेगा, करेक्ट? क्या रेडियो मिर्ची पकड़ने के लिए कोई भी फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी चलेगी? 98.2 भी नहीं चलेगा, 98.4 भी नहीं चलेगा. तो अगर रेडियो मिर्ची को पकड़ना है तो आपको 98.3 पे ट्यून करना पड़ेगा. दैट मीन्स यू हैव टू ट्यून इट टू द एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी. इसी तरह हमें जो अपने लाइफ में चाहिए, हमारे गोल्स, वो पूरी तरह से क्लियर होने चाहिए कि मुझे एग्जैक्टली क्या चाहिए. जितने ज़्यादा आप क्लियर हो उतने ही क्लियरली आप सीड्स को इंस्टॉल करोगे आपके माइंड में, जीनी को सही कमांड दोगे और सही वाइब्रेशन भेजोगे. और लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हमने क्या कहा था कि जो आप दोगे कुदरत आपको वही देगी. वॉट एवर यू गिव आउट यू विल गेट बैक. तो अगर आप क्रिस्टल क्लियर सिग्नल्स भेजते हो कि मुझे ये चाहिए, तो यूनिवर्स हैज़ टू रिस्पॉन्ड, देयर इज़ नो ऑप्शन. देखो, इस हवामान में कितनी सारी फ्रीक्वेंसीज है, जैसे, लेकिन जैसे आप ट्यूनर को ट्यून करते हो तो वो करेक्ट फ्रीक्वेंसी आप पकड़ते हो. इसी तरह आप अपने माइंड को जब करेक्ट फ्रीक्वेंसी को ट्यून करते हो कि आपको जो चाहिए, आपका गोल, उसके ऊपर आप जब ट्यून करते हो तो उसकी सारी कनेक्टेड चीज़ें आपके लाइफ में आकर्षित होती है. दैट इज़ लॉ ऑफ अट्रैक्शन. Whatever you think, you will attract everything that is required for you to achieve that goal. Suppose आपको अपने बिजनेस को बढ़ाना है और आप क्लियर हो कि मुझे अपने बिजनेस को 5 करोड़ तक लेके जाना है या 10 करोड़ तक लेके जाना है, और आपने एक ही नंबर अपने माइंड में पकड़ के रखा है कि मुझे इतना हासिल करना है. When you keep holding the same thought in your mind over and over again, you are generating the exact same frequency all the time. अब उस 5 करोड़ को अचीव करने के लिए जिस किसी चीज़ की ज़रूरत है वो आपके लाइफ में आकर्षित होगी. दैट इज़ द लॉ ऑफ अट्रैक्शन. और लॉ ऑफ अट्रैक्शन किसी को छोड़ता नहीं है, जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन किसी को छोड़ता नहीं है. हमने कहा था ना, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एक, इट इज़ अ नेचुरल लॉ. नोबडी, इट डजंट लीव एनीबडी. जो भी 9 माले पे जाएगा वो जब मारेगा तो नीचे ही गिरेगा, और फिर ऊपर जाएगा वो अलग बात है, लेकिन पहले तो नीचे आएगा. दैट मीन्स द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वर्क्स फॉर एवरीबडी, नॉट अ सिंगल पर्सन इज पेड. सिमिलरली द लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऑल्सो वर्क्स फॉर एवरी सिंगल पर्सन. As you sow, that means whatever signals you are sending is exactly what you will attract. As you sow, so shall you reap. लेकिन ये सारी चीज़ों के लिए हमें 100% क्लियर होना ज़रूरी कि हमें क्या चाहिए. तो आज मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा जिससे कि आप पूरी तरह से क्लियर हो सकते हो कि आपको क्या चाहिए. हमने कल ये कहा कि हमें ये भी क्लियर होना ज़रूरी कि हमारा मकसद क्या है इस जीवन में. What am I really
what do I really want to achieve in my life, what am I really here for. लेकिन आज हम फोकस करेंगे what do I really want in my life. ओके तो इसके लिए मैं आपको कुछ छोटी छोटी एक्सरसाइजेस बताता हूँ. तो सबसे पहले हमारी लाइफ जो है, इट इज़ नॉट वन डिपार्टमेंट. इन आवर लाइफ वी हैव सेवरल डिपार्टमेंट्स. मतलब हमारे लाइफ के काफ़ी सारे एरियाज़ होते हैं. तो हमें क्या करना है, हमारे लाइफ के सारे एरियाज़ में क्लियर होना है कि हमें उस एरिया में क्या चाहिए. तो हमारे लाइफ के एग्जैक्टली 7 एरियाज़ होते हैं. आई एम गोइंग टू टेक यू थ्रू द 7 एरियाज़ फॉर विच यू नीड टू बी क्रिस्टल क्लियर ऑफ वॉट यू वॉन्ट. तो सबसे पहली एरिया हम कह सकते हैं हेल्थ एंड अपीयरेंस. तो आपको क्या करना है, शांति से बैठना है, अपने आप से पूछना है कि अगर मेरे हाथ में जादू की छड़ी होती, इफ़ आई हैड अ मैजिक वॉन्ड इन माई हैंड, हाउ वुड आई वॉन्ट माई हेल्थ टू बी. अपनी हेल्थ मुझे मैं कैसी चाहता हूँ. तो इसमें आपको मैं जादू की छड़ी इसलिए लेने को कह रहा हूँ क्योंकि ज़मीन में कोई लिमिटेशन नहीं होती है, जीनी के अंदर कोई लिमिटेशन नहीं है. लिमिटेशन है तो सिर्फ हमारी सोच में. तो सोच में से सारी लिमिटेशंस को निकाल के हमें ये डिसाइड करना है कि हमें किस तरह की हेल्थ चाहिए. आज, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, 5 साल के बाद आप अपनी हेल्थ कैसी चाहते हो. तो मैं तो कहता हूँ पूरा पेज भर के डिटेल में लिखो कि आपकी हेल्थ आप कैसी चाहते हो. सो फॉर एग्जाम्पल यू कैन से आई एम कम्प्लीटली फिट एंड फाइन, माई बॉडी इज़ ऑलवेज फुल ऑफ एनर्जी, I'm always vibrant and full and radiant, and मैं जितना चाहता हूँ उतना काम कर पा रहा हूँ. I'm always happy, peaceful, joyful, because wellness and health is not only physical wellness, it is also mental wellness. तो आप अपनी mental wellness के बारे में लिख सकते हो. I'm always calm, I'm always peaceful, happy, joyful, having a wonderful life. मैं जो चाहता हूँ मैं कर पा रहा हूँ. I'm able to do a lot of exercise. I always eat the right kind of food. तो आप उसको चाहे तो प्रेजेंट टेंस में लिखो. इनफैक्ट प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे तो और भी अच्छा है. तो ये मत सोचो कि आज आपकी हेल्थ कैसी है. आपको ये सोचना है कि आपको किस तरह की हेल्थ चाहिए. क्योंकि जीनी आपको कोई चीज़ देने के लिए ना नहीं बोल रहा है. क्वेश्चन ये है कि आप मांग क्या रहे हो. अब ज़्यादातर लोग गलत चीज़ें मांगते रहते हैं क्योंकि वो गलत चीज़ें सोचते रहते हैं, या गलत चीज़ें सोचते हैं, गलत चीज़ें देखते हैं, एंड दैट इज़ वाई अनफॉर्चुनेटली इट डजंट हैपन. Ninad says, remember the financial goal I had said, which I finally achieved last month after years of trying? Yes, तो निशाद, congratulations. निशाद कह रहे हैं कि उन्होंने एक फाइनेंशियल गोल सेट किया था हमारे वर्कशॉप में आकर के, और उन्होंने एग्जैक्टली वही गोल को अचीव किया. ओके तो देर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग पावर इन क्लैरिटी. क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है, एब्सोल्युटली क्रिस्टल क्लियर. क्योंकि जीनी को कन्फ्यूजन पसंद नहीं है. जीनी को आप एक दिन बोलोगे ये चाहिए, दूसरे दिन बोलोगे ये चाहिए. जीनी को सब पसंद नहीं है. जीनी लव्स क्लैरिटी. जितना आप ज़्यादा क्लियर हो उतना ज़्यादा जीनी पसंद करता है. या फिर आपका ज़मीन, क्या आप ज़मीन में एक दिन को एक सीड डालोगे, दूसरे दिन दूसरा सीड डालोगे, तो कौन सा पौधा मिलेगा? एक भी नहीं मिलेगा. तो हमें पूरी तरह से क्लियर होना है कि कौन से बीज को बोना है. ओके सो फर्स्ट एरिया इज हेल्थ, सेकेंड एरिया इज रिलेशनशिप्स. क्या आप अपने रिश्ते कैसे चाहते हो? हाउ डू यू वांट योर रिलेशनशिप्स टू बी. हमारे रिश्ते 2 तरह के होते हैं. एक होता है जो हमारे घर में होते हैं, दूसरे होते हैं जो ऑफिस में होते हैं. तो आप एक पन्ना भर के लिखो, पेज भर के, कि हाउ डू यू वांट ऑल योर रिलेशनशिप्स टू बी. ये मत सोचो कि आज आपका रिश्ता कैसा है. सपोज आज आपका रिश्ता आपकी सास के साथ में अच्छा नहीं है, या फिर ब्रदर के साथ में अच्छा नहीं है, या पेरेंट्स के साथ में अच्छा नहीं है. वो आज का समय है. डोंट वरी अबाउट व्हाट्स गोइंग ऑन टुडे. आई वॉन्ट यू टू राइट डाउन व्हाट डू यू वांट आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 3 ईयर्स. ओके तो आप अपने रिश्ते कैसे चाहते हो, कैसा चाहते हो, उसको लिखिए डिटेल में. ओके द थर्ड एरिया ऑफ योर लाइफ इज़ योर फाइनेंशियल एरिया. क्या आप अपनी पैसों की लाइफ में क्या चाहते हो? आपकी मंथली इनकम कितनी होनी चाहिए, आपका बैंक बैलेंस कितना होना चाहिए, सेविंग्स कितने होने चाहिए, इन्वेस्टमेंट्स कितने होने चाहिए. तो आपके फाइनेंशियल एरिया में सारी मटीरियलिस्टिक चीज़ें आ जाती है. आप अपना घर कैसा चाहते हैं, आपकी कार कैसी होनी चाहिए, आपकी लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए. पूरा डिटेल में लिखो कि आप क्या चाहते हो.
ओके, एंड देयर इज़ अ बिग पावर इन राइटिंग, बाय द वे। इसको आप माइंड में नहीं सोचना है मैं ये चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ। माइंड में रखोगे तो 4 दिन में भूल जाओगे, बट जो लोग अपने माइंड को हाथों के द्वारा अपने पेज पे लिखते हैं, यू आर एक्चुअली पुटिंग योर सबकॉन्शियस, यू आर इस्टेब्लिशिंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिटवीन योर सबकॉन्शियस माइंड एंड देर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिटवीन राइटिंग इन योर सबकॉन्शियस माइंड। तो जब आप किसी चीज़ को लिखते हो तो उस चीज़ को सच होने की संभावना बहुत ज़्यादा हाई होती है। आपने नोटिस किया होगा कि जनरली लोग दिसंबर 15 के आसपास, यू नो, व्हेन द न्यू ईयर इज़ कमिंग अप, दे राइट रेजोल्यूशंस इन देयर डायरी कि अगले साल मुझे ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। अब सारे रेजोल्यूशन हम लिख देते हैं और लोग मेहनत करते हैं, 15 दिन सब मेहनत करते हैं, और 15 दिन के बाद ऑल द रेजोल्यूशंस आर आउट ऑफ द डोर। सारी चीज़ें हम भूल जाते हैं और डायरी कहीं पे रखी हुई होती है एंड वी फॉरगेट व्हाट वी हैव रिटन। लेकिन यू विल बी शॉक्ड टू सी कि अगर साल के एंड में अगर आपने उसी डायरी को खोला वेर यू हैड रिटन योर रेजोल्यूशंस लास्ट ईयर, you will be shocked to see that 60 to 70% of the things would have automatically been done. Okay? तो अगर आप एक बार भी डायरी में पूरे दिल से लिखते हो तो वो सबकॉन्शियस माइंड में इंस्टॉल हो जाता है और सबकॉन्शियस माइंड उसको सर्च करने के लिए कुछ भी करता है। ओके, इट डज एनीथिंग एंड एवरीथिंग टू मेक इट हैपन। सो आप लिखिए, जो मैं आपको कह रहा हूँ उसको लिखिए। तो सबसे पहले अपनी हेल्थ के एरिया में लिखिए कि क्या चाहते हो, रिश्तों में क्या चाहते हो, फाइनेंशियल लाइफ के एरिया में क्या चाहते हो। ओके, देन द नेक्स्ट इज़ योर जॉब और बिजनेस और करियर। आप अपने करियर में, आपके करियर में आप कौन से पोजीशन में हो, क्या कॉम्पनसेशन है, आपकी पोजीशन क्या है, आप किस तरह की जॉब कर रहे हो, किस तरह की कंपनी में आप जॉब कर रहे हो, क्या आप ट्रैवल कर रहे हो। अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो क्या सिर्फ इंडिया में कर रहे हो या इंटरनेशनली ट्रैवल कर रहे हो। अपने आप से पूछो कि आप किस तरह का जॉब चाहते हो या आपका बिजनेस किस लेवल तक पहुंच चुका है। ये चिंता मत करो कि आप वहाँ कैसे जाओगे। ओके, सो उसके काफ़ी सारे प्रोसेसेस है, वो प्रोसेसेस को हम करेंगे तो वी विल डेफिनेटली रीच आवर डेस्टिनेशन। ओके, सो इस तरह से आप अपने फाइनेंशियल एरिया के बारे में लिखो, आपके करियर, बिजनेस और जॉब के बारे में लिखो। देन द फिफ्थ एरिया इज़ फ्री टाइम एंड रिक्रिएशन टाइम। तो जब भी आपको फ्री टाइम मिलता है तो आप क्या कर रहे हो, क्योंकि जब भी हमें फ्री टाइम मिलता है तो हम उसको अच्छे से इस्तेमाल करेंगे तो अच्छा है, अदरवाइज द टाइम इज़ गॉन। जैसे अभी हमें फ्री टाइम मिल रहा है तो अगर हमारे गोल्स क्लियर है तो हम इस टाइम को अच्छे से इस्तेमाल करेंगे, अदरवाइज द फ्री टाइम इज़ गॉन। तो कुछ लोग ये डिसाइड करते हैं कि फ्री टाइम में आई विल टेक माई फैमिली फॉर अ वेकेशन। कुछ लोग कहते हैं आई वॉन्ट टू गो फॉर स्पिरिचुअल ग्रोथ, यू नो। कुछ लोग विपासना ज्वाइन करते हैं, कुछ अलग तरीके से अपने स्पिरिचुअल डेवलपमेंट को करते हैं। या सो what are you doing in your free time? Some people take a lot of courses, they learn a lot of things. So write down, what are you doing in your free time? Okay, some people follow hobbies. कुछ गिटार के क्लासेस करते हैं, कुछ वायलिन के क्लासेस करते हैं, कुछ सिंगिंग के क्लासेस करते हैं। तो आपको ये लिखना है कि फ्री टाइम में आप क्या कर रहे हो। ओके, द नेक्स्ट वन, द सिक्स्थ एरिया ऑफ योर लाइफ इज़ बेसिकली योर पर्सनल एरिया, कि आप अपने आप को कैसा देखना चाहते हो। Maybe after 3 years, maybe after 5 years. What kind of a person have you become in 3 years? What kind of a person have you become in 5 years? देखो, आपको जितने भी बड़े गोल अचीव करने हैं उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आई थिंक द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग दैट हैपन्स व्हेन यू आर ट्राइंग टू अचीव बिग गोल्स इज दैट यू हैव टू बिकम अ डिफरेंट पर्सन। जितने बड़े आपके लक्ष्य है उतना ही अलग आपको एक इंसान बनना पड़ेगा। ओके, तो कोई सीईओ अगर बनना चाहता है तो सीईओ बनने के लिए बहुत सारी क्वालिटीज़, एबिलिटीज़, टैलेंट्स डेवलप करनी पड़ती है। तो व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन हैव यू बिकम इन 3 years? हो सकता है कि यू आर वेरी कॉन्फिडेंट, यू डेवलप द स्किल ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, यू आर एबल टू कम्युनिकेट वेरी वेल विद पीपल, you know, you've learned how to heal yourself, you learned how to take control of your mind. तो ये सारी चीज़ें आपने सीखा है, इस तरह से आप लिखो। आप लिखो कि 3 साल के बाद मैं अपने आप को ऐसा देखना चाहता हूँ या ऐसी देखना चाहता हूँ। ओके, सो दैट इज़ अबाउट योर पर्सनल एरिया। एंड द लास्ट पार्ट ऑफ योर लाइफ इज़ व्हाट इज़ नोन एज द कम्युनिटी एरिया ऑफ योर लाइफ। दिस इज़ द 7th डिपार्टमेंट ऑफ लाइफ। देखो, हम जिंदगी से लेते तो बहुत है, लेकिन हम जिंदगी को दे क्या रहे। हाउ आर यू गिविंग बैक टू द सोसाइटी?
ओके, रिमेंबर वी टेक अ लॉट फ्रॉम द वर्ल्ड, कितना सारा चीज़ें हम लेते हैं, तो हम देते क्या है? एंड गिविंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ लाइफ. ओके, सो आप किस तरह से दे रहे हो? देखो, लोग अलग अलग तरीके से देते हैं. कुछ लोग चैरिटी देते हैं, कुछ लोग अपना समय देते हैं. इवन गिविंग योर टाइम टू पीपल, like when you're giving your time and you're helping people achieve something, or you're sharing your knowledge, you're sharing your wisdom. सिर्फ आप किसी के साथ में बैठ के you're lending a ear, आप शांति से सुन रहे हो उसकी बातें, that is also giving. If you give a smile also, that is also giving. Okay, so आप किस तरह से दे रहे हो? How are you giving in? Yes, Sanjeev ji, good evening. Hello, Joy. Nice to see you guys. सो मैं चाहता हूँ कि आप पूरी तरह से क्लियर हो जाओ कि आपको लाइफ में क्या चाहिए. तो मैंने आपको कहा कि हमारे लाइफ के 7 डिपार्टमेंट्स हैं. जस्ट फॉर द sake of people who joined in a little late, we have 7 departments in life in which we need to write down exactly what we want. The first area is health, second is relationships, third is the financial area of your life, fourth is your job, business and career, fifth is free time and recreation time, sixth is your personal, कि आप किस तरह के इंसान बन गए हो, and seventh is the community aspect of your life. What are you giving back? तो जब आप पूरी तरह से क्लियर हो जाते हो और रोज इस चीज के ऊपर फोकस करते हो, तो योर माइंड इज ऑलवेज ट्यून्ड इनटू द करेक्ट फ्रीक्वेंसी. मतलब जब आपका माइंड किसी एक चीज के बारे में कंटिन्यूस सोचता है, तो आप सोचिए यू आर सेंडिंग द सेम सिग्नल एवरी डे. हमारे माइंड का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि इतना बंदर है कि वो कुछ भी सोचते रहता है. और इसलिए क्या होता है, हमारे लाइफ में कुछ भी आता है बिकॉज वी आर नॉट कॉन्शियसली थिंकिंग, वी आर थिंकिंग अनकॉन्शियसली. दैट इज वाई अ लॉट ऑफ थिंग्स अननोइंगली हैपन्स इन टू आवर लाइफ. व्हेन यू बिकम वेरी कॉन्शियस ऑफ वॉट यू आर थिंकिंग and what you want in your life, you exactly attract those things into your life. Okay, so this is the first exercise I want you to do, is to write down exactly what you want in all 7 areas of your life. उसके बाद ये जो हमने लिखा, ये तो एक सपना है कि मुझे ये इस तरह की ज़िंदगी जीनी है, मेरी हेल्थ ऐसी होनी चाहिए, मेरे रिश्ते ऐसे होने चाहिए, मेरी लाइफस्टाइल ऐसी होनी चाहिए, मेरा जॉब है या बिजनेस ऐसा होना चाहिए, मैं खुद ऐसा होना चाहिए. That is a picture you are creating in your mind of what you want to be. This is what you can say, it's a dream. अब देखो, सपने देखने वाले तो बहुत होते हैं, लेकिन सिर्फ सपने देखने से क्या गोल हासिल हो जाएंगे? क्या वो सपना हासिल हो जाएगा? नो. तो इस सपने को हकीकत में बदलने के लिए we need to convert this into specific measurable goals. Okay? So पहले हमने जो क्रिएट किया इसको हम कहते हैं विजन. एक लंबा विजन कि मुझे यहाँ पे जाना है, मुझे ये क्रिएट करना है. और उस विजन को सच में बदलने के लिए हमें करना है, क्या करना है? वी नीड टू राइट डाउन गोल्स. और गोल्स बहुत स्पेसिफिक होने चाहिए, बहुत क्लियर होना चाहिए कि आपको उस विजन तक अगर पहुँचना है तो आप पहला कदम क्या उठाओगे. ओके, तो गोल्स जब हम लिखते हैं तो हमें 3-4 चीज़ों की ध्यान रखना है. बिकॉज देखो, हमारे पास इतना अच्छा समय है अभी. Hopefully we'll be out of the lockdown soon. But अगर हम लॉकडाउन में है, तो आई एम टेलिंग यू guys, this is the best time to become absolutely clear of what you want in your life. इसके लिए आपको कुछ समय अकेले बैठना पड़ेगा, शांति से बैठना पड़ेगा. You'll have to do a lot of internal reflection and you'll have to ask deep down inside. You'll have to ask yourself, what do I really want in my life? My only suggestion to all of you is don't be influenced by what other people are saying. दूसरे क्या कह रहे हैं उससे इन्फ्लुएंस मत होइए. आप डिसाइड करिए कि आपको क्या चाहिए. ओके, हर इंसान को करोड़पति नहीं होना है, हर इंसान को बड़े बंगले, गाड़ी, वो सब नहीं चाहिए. मैं ये कह रहा हूँ कि आप क्या चाहते हो उसको आप लिखो. डोंट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय व्हाट अदर पीपल आर टेलिंग यू, बट डोंट बी लिमिटेड ऑल्सो बाय व्हाट यू कैन अचीव. ओके, क्योंकि हमारा माइंड काफ़ी लिमिटेशंस में आ जाता है. बचपन से हमको कहा जाता है कि ये हो नहीं सकता, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तेरे से कहाँ होने वाला है, तेरे पास तो डिग्री नहीं है, तू कहाँ से सक्सेसफुल हो सकता है, द वर्ल्ड इज़ सो स्मॉल, पीपल आर नॉट नाइस, ये कभी हो ही नहीं सकता, दिस इज़ इम्पॉसिबल. ओके,
तो ये जो लिमिटेशंस माइंड में आ जाते हैं, इसको हमें पार करना है. वी नीड टू ओवरकम दीज लिमिटेशंस, राइट. तो पहला कदम है कि अपने हाथ में एक जादू की छड़ी रखो और अपने विजन को डिसाइड करो, राइट. एंड देन वी गोइंग टू लर्न सम टेक्निक्स ऑन हाउ टू अचीव दोज गोल्स एंड विजन्स एंड ऑल ऑफ दैट, राइट. सो आई वाज टॉकिंग अबाउट सेटिंग गोल्स, हाउ टू सेट गोल्स. तो गोल सेट करते समय हमें खास करके 2 या 3 चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है. सबसे पहले हमें गोल्स को अपने लाइफ के हर एरिया में सेट करना ज़रूरी है. बिकॉज गोल्स अगर हम सिर्फ एक एरिया में सेट करेंगे, समझो सिर्फ बिजनेस में, और हमने सिर्फ बिजनेस पे ध्यान दिया, बिजनेस बिजनेस बिजनेस, पूरे दिन सिर्फ बिजनेस पे ध्यान दिया, तो हो सकता है कि आप बिजनेस के गोल्स को आप सेट कर लोगे, या एंड यू विल अचीव योर गोल्स इन द बिजनेस. लेकिन अगर आपने सिर्फ बिजनेस के गोल्स सेट किए तो हो सकता है कि आप अपनी हेल्थ को इग्नोर करोगे, हो सकता है कि आप अपने रिश्तों को इग्नोर करोगे. तो होगा क्या कि आप अपने सारे बिजनेस गोल्स को अचीव कर लोगे, करियर गोल्स को अचीव करोगे, बट बाय दैट टाइम यू नो पीपल स्टार्ट गेटिंग डायबिटीज, हार्ट प्रॉब्लम्स, हेल्थ प्रॉब्लम्स, यू नो ऑल काइंड्स ऑफ चैलेंजेस, स्ट्रेस, तनाव, नॉट हैप्पी इन लाइफ. All of that is not success. I don't think this is success. Success means success in all areas of your life. तो जब आप अपने गोल को अचीव कर रहे हो तो डोंट फॉरगेट द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ लाइफ विच इज़ हेल्थ एंड रिलेशनशिप्स. इसलिए हमें गोल्स को हर एरिया में सेट करना ज़रूरी है. इसको हम कहते हैं बैलेंस्ड गोल सेटिंग. अगर गोल्स हम सिर्फ एक एरिया में सेट करेंगे तो लाइफ में इम्बैलेंस होने का पूरा चांस है. कुछ लोग क्या करते हैं कि दिन भर अपने हेल्थ पे ही ध्यान रखते हैं, दिन भर जिम में बैठे रहते हैं. अभी आजकल तो जिम में जा नहीं सकते, लेकिन कितने लोग मैं देखता हूँ 4-4, 5-5 घंटे जिम में निकालते हैं और इतनी ज़बरदस्त बॉडी बनाते हैं. 6 पैक 8 पैक भी है, लेकिन जेब में 1 रुपया भी नहीं है. तो अभी उस तरह की हेल्थ का क्या करना है जब जेब में 1 रुपया भी नहीं है. सो सक्सेस इज़ रिक्वायर्ड इन ऑल एरियाज ऑफ लाइफ. सक्सेस इन वन एरिया ऑफ लाइफ अलोन क्रिएट्स इम्बैलेंस. ओके. So there are some people who are very good in business and in health is also very good, but relationships are suffering because जो ध्यान relationship से ऊपर देना चाहिए था वो नहीं दिया, इसलिए उसके ऊपर सफ़र हो जाता है. देखो समझो एक आप कार के बारे में सोच रहे हो. कार के कितने व्हील्स होते हैं? दे आर 4 व्हील्स. ओके. सपोज एक व्हील के अंदर बहुत सारी हवा है, दूसरे व्हील के अंदर थोड़ी हवा कम है, तीसरे व्हील में और भी हवा कम है, और चौथे व्हील में हवा ही नहीं है. So how long do you think this car will run? Do you think the car will be able to run too long? No, because it's going to just wobble and it's not going to run. Similarly, if we are focused on only one area of our life, then we'll end up, you know, basically compromising on other areas of life, and somewhere then we are not able to get happiness. Happiness can come when you have balanced success in your life. Otherwise, any area of life will suffer. Unfortunately, it takes away all the happiness from our life. Okay? तो सबसे पहला फैक्टर जो हमें गोल सेट करते समय करना है, that is known as balanced goal setting. Make sure that you have setting goals in all areas of life. हमारे लाइफ के 7 एरियाज है, 7 एरियाज में हमें गोल्स सेट करने हैं. चलिए हम आगे बढ़ने से पहले I would like to ask all of you, what are the 7 areas of your life in which you need to set goals? Let me see how carefully you are listening. What are the 7 areas of your life for which you need to set goals? Okay, Prabhakar says, like a balanced diet, we need balanced goals too. Yes, absolutely. Diet में भी imbalance में कितनी गड़बड़ होती है. Does anybody remember the 7 areas in which we have to set our goals? Very good. Dilip Sahu says health, relationships, finance, career, personal, and what you can give back. Yes. इसमें free time, family time एक all add करना है. Very good. He says that also. So I think you got it right. Perfect, Dilip ji. So there are 7 areas of our life in which we need to set our goals. Very good. ये बहुत clear होना ज़रूरी है.
Awesome, very nice. Everybody's got it right. Ramesh ji also says 7 areas. Brilliant. So then we said that we need to set goals in all 7 areas. That is known as balanced goal setting. Okay? और उसके बाद हमें क्या करना है कि गोल्स जब आप लिखोगे तो यू नीड टू मेक श्योर दैट यू आर राइटिंग योर गोल्स, मेकिंग श्योर दैट यू आर राइटिंग हाउ मच बाय व्हेन. मतलब यू आर राइटिंग हाउ मच डू यू वांट टू अचीव बाय व्हाट डेट. इसको हम कहते हैं स्मार्ट गोल सेटिंग. स्मार्ट गोल सेटिंग, इसमें जो लेटर होता है SMART, एवरी लेटर हैज़ अ मीनिंग. S स्टैंड्स फॉर स्पेसिफिक. सो गोल्स हमेशा स्पेसिफिक होने चाहिए. अगर मैं कहता हूँ कि मुझे ज़्यादा पैसा चाहिए तो जीनी क्या करेगा पता है? 20 रुपया ज़्यादा दे देगा, ये लो ज़्यादा पैसा. Now does that work for us? No, obviously not. So we need to tell the genie that I want to earn X amount of rupees every month. I want my weight to be X kilos. I want my business to be of X crores turnover. So S stands for specific. If you are specific of what you want, then the genie understands कि आपको exactly क्या चाहिए. Right? The second letter of SMART is M. M का meaning है measurable. मतलब आप उसको गिनती कर सकने चाहिए. अगर मैं आपको कहता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा पैसा कमाना चाहता हूँ, कैन यू काउंट इट? नो, बिकॉज देर इज़ नो मेजरेबिलिटी देर. ज़्यादा पैसा का मतलब क्या? देर इज़, यू कैनॉट काउंट इट. लेकिन अगर मैं ये कहता हूँ कि मैं ये चाहता हूँ कि हर महीने में 5 लाख रुपए कमाओ या 2 लाख रुपए कमाओ, कैन यू काउंट दैट? येस, ऑफ कोर्स यू कैन काउंट इट. ओके, तो अगर आप ये कहते हो कि आई वॉन्ट टू लूज वेट, इज दैट समथिंग मेजरेबल? वेरी डिफ़िकल्ट. क्योंकि आप जब गोल सेट करोगे तो सडनली थोड़ा कम होगा, फिर वापस बढ़ जाएगा, फिर वापस कम होगा, फिर वापस कम होगा. देर इज़ नो वे टू मेजर दैट. बट अगर आप ये कहते हो कि आई वॉन्ट माई वेट टू बी 60 किलोज, तो क्या आप मेजर कर सकते हो? येस. आप अपने वेइंग स्केल पे चढ़ जाओ, आपको पता चलेगा वजन कितना है. तो यू आर एग्जैक्टली एबल टू वे योर सेल्फ एंड यू आर एबल टू मेजर इट. दैट इज़ वाई दैट गोल इज कॉल्ड measurable goal. Then the third letter of SMART is A. A stands for attainable. Attainable मतलब do you believe that you can achieve this goal? अगर आप पूरी तरह से बिलीव करते हो कि आप इस गोल को अचीव कर पाओगे तो आप उसको कर पाओगे. क्योंकि जीनी, अगर आप विश्वास करोगे तो ही काम करेगा, नहीं तो क्या करेगा? थोड़ा काम करेगा, फिर वापस भाग के आ जाएगा, बोलेगा आपको विश्वास नहीं है तो मैं कुछ नहीं करता हूँ, वापस आ जाता हूँ. तो जब भी आप कोई गोल सेट करते हो तो आपको उसके ऊपर पूरा विश्वास होना चाहिए कि मुझे इतना पैसा कमाना है, मुझे इस तरह के घर में रहना है, मुझे इस तरह की कार चलानी है, मुझे इतना कम्युनिटी सर्विस करना है, आई वॉन्ट टू कॉन्ट्रीब्यूट दिस मच बैक टू द सोसाइटी. तो वट एवर गोल यू आर सेटिंग, यू मस्ट कंप्लीटली बिलीव इन दैट गोल. ओके. आर स्टैंड्स फॉर रियलिस्टिक और रेलेवेंट. रियलिस्टिक का मीनिंग क्या है कि गोल ऐसा भी मत सेट करो कि उसका कोई मीनिंग ही नहीं है. जैसे फॉर एग्जांपल मैं मार्स में जाकर रहना चाहता हूँ, तो मैं उनको कहता हूँ पहले बेटे अर्थ में तो अच्छे से रह ले, फिर बाद में मार्स में जाना. आई वॉन्ट टू एस्टैब्लिश वर्ल्ड पीस. येस, फर्स्ट एस्टैब्लिश पीस एट होम, देन लेट्स एस्टैब्लिश पीस इन द वर्ल्ड. राइट? सो गोल शुड नॉट बी completely which is unrealistic. So keep goals which are realistic. Okay, and it should be relevant also. आपसे जुड़ा हुआ होना चाहिए, आपसे कनेक्टेड होना चाहिए. And T stands for time bound. मतलब every goal should have a deadline. अगर डेडलाइन होगा तो आपका जीनी आपको उससे काम करवाएगा, आपसे एक्शन करवाएगा. अगर डेडलाइन नहीं है तो जीनी बोलेगा बहुत टाइम है, बाद में काम करेंगे, और जीनी सो जाएगा. ओके, तो टू मेक श्योर द जीनी इज एक्टिव, यू नीड टू मेक श्योर दैट यू सेट अ डेडलाइन फॉर एवरी गोल. Right? So, can anybody define what SMART means? What do the 5 letters of SMART mean? So while somebody is typing it out, I would like to add one very important area. Yes, Ramesh is very good, he's so quick.
S stands for specific, M stands for measurable, A stands for attainable and achievable, R stands for realistic, and T stands for time bound. All our goals, yes Prabhakar ji, perfect. Pradnya ji, very, very good, perfect. So all our goals should be smart. So good smart goal example would be, I want my weight to be 60 kilos by 31st January 2021. I want to earn X amount of rupees every month starting 30th June 2020. So this is called a specific goal. It is specific, it is measurable, it is attainable, it is relevant and it is time bound. जब आप गोल को स्पेसिफिक तरीके से सेट करते हो तो आपकी फ्रीक्वेंसी हमेशा फिक्स रहेगी, क्योंकि आप कंफ्यूज नहीं हो आपको क्या चाहिए. और जब आपकी डोमिनेंट फ्रीक्वेंसी एक होगी, जब आप एक ही चीज़ के बारे में बार बार सोचते हो, तो आप कॉन्स्टेंटली सेम फ्रीक्वेंसी जनरेट कर रहे हो. और जैसे आप कॉन्स्टेंट सेम फ्रीक्वेंसी जनरेट करोगे तो आपके लाइफ में वो सारी चीज़ें आकर्षित होगी. जैसे मैं फिर से संजीव जी का एग्जाम्पल लेता हूँ. संजीव प्रभु जी ने अपने कंपनी में टारगेट रखा था कि हमें 100 करोर्स अचीव करना है. तो मुझे याद है कि उन्होंने 100 करोर्स, सबके माइंड में एक ही नंबर था, 100 100 100 100. और क्योंकि उन्होंने वो सेम नंबर पकड़ के रखा था तो उन्होंने उस साल एग्जैक्टली 100.15 करोर्स एग्जैक्टली ऐसा कुछ अचीव किया था उन्होंने. आई रिमेंबर दिस. So they were able to go from 35 to 100 crores in a time period of about 1.5 to 2 years, which was amazing. Nobody could even think of that. लेकिन उन्होंने सबने अपने माइंड के पावर को यूज़ करके उसको अचीव किया. Now obviously it involves a lot of techniques and tools and strategies. लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको क्लियर होना बहुत ज़रूरी है कि आपको क्या चाहिए. हमारे एक दूसरे क्लाइंट है, उनका नाम है मिस्टर सुनील मिश्रा. आई डोंट नो वेदर ही इज़ ऑनलाइन राइट नाउ, but he is in close to a place called Lucknow. There is a place called Basti. तो वो वहाँ पे है. हर साल मुझे वो बुलाते हैं, उनके सारे एम्प्लॉयज़ को ट्रेन कराते हैं. तो पहले साल जब मैं उनको मिला तो उनका कंपनी का जो टर्नओवर था, दैट वाज अप्रॉक्सीमेटली, दे बेसिकली सेल ट्रैक्टर्स. स्वराज ट्रैक्टर की उनकी एजेंसी है. तो मैं जब गया था तो उनके ईयरली ट्रैक्टर्स का सेल कुछ 350 ट्रैक्टर्स था. और बस्ती इज़ अ वेरी स्मॉल प्लेस, तो 350 ट्रैक्टर्स ऑल्सो वॉज अ गुड नंबर. लेकिन वो कहते थे, उन्होंने मुझे कहा कि सर क्या हम इससे ज़्यादा कर सकते हैं. तो मैंने उनके पूरे स्टाफ को ट्रेन किया, राइट फ्रॉम द CEO डाउन टू द प्यून. सब एवरीबडी, पीपल इन द शॉप फ्लोर, एवरीबडी वॉज ट्रेन्ड ऑन हाउ टू यूज़ द सबकॉन्शियस माइंड. तो सब लोगों ने गोल रखा कि वी विल अचीव 501 ट्रैक्टर्स दिस ईयर. ये 2017 की बात है. तो मुझे याद है कि एग्जैक्टली 31 मार्च 2017 के दिन उनको 501st ट्रैक्टर का ऑर्डर मिला था. एंड दे वर एबल टू क्लोज 501 ट्रैक्टर्स. 350 टू डायरेक्ट टू 501 ट्रैक्टर्स पर ईयर, और वो भी इतनी छोटी बस्ती जैसी जगह में. उसके बाद उन्होंने गोल रखा 650 ट्रैक्टर्स. दैट ऑल्सो दे वर एबल टू अचीव. उसके बाद 800, और इस साल उनका टारगेट है 1000 ट्रैक्टर्स पर ईयर. जब पूरी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री डाउन जा रही है, इनका सेल ज़बरदस्त जा रहा है. कैन यू बिलीव इट? इट्स हार्ड टू बिलीव, बट ही सेज सर लास्ट ईयर उनको एक सिंगल ऑर्डर मिला था विच वॉज अबाउट 250 ट्रैक्टर्स, विच वॉज नेवर डन इन द हिस्ट्री ऑफ द कंपनी. इसलिए उनके जो कंपनी के लोग हैं स्वराज ट्रैक्टर, वो भी इतने शॉक हो गए कि ये कैसे हो सकता है. तो उन्होंने भी मुझे बुलाया कि सर हमारे स्टाफ को भी आके ट्रेन करो. तो मैंने जाके फिर उनके स्वराज माजदा के जो सेल्स टीम है उसको भी ट्रेन किया था. एंड दैट इज़ हाउ दैट रीजन इज़ डूइंग वेरी वेल इन स्पाइट ऑफ ऑल द चैलेंजेस इन द मार्केट. दिस इज़ व्हाट हैपन्स व्हेन यू आर वेरी क्लियर ऑफ व्हाट यू वांट, व्हेन यू यूज़ द माइंड पावर टेक्निक्स. You are literally able to achieve your goals and targets and all of that because your mind is always tuned to the right frequency. आपने ये चीज़ नोटिस किया होगा कि जब भी आप क्लियर हो जाते हो कि आपको क्या चाहिए. फॉर एग्जांपल, आपका सारा घर मिल करके डिसाइड करते हो कि हमें ये पर्टिकुलर कार लेनी है, होंडा सिटी सिल्वर कलर की, और एक पर्टिकुलर मॉडल. तो जैसे ही आप रोड पे जाओगे
तो आपको चारों ओर वही कार दिखेगी। आपके आगे भी होंडा सिटी खड़ी है, वो भी सिल्वर कलर की है। आपके साइड में भी सिल्वर कलर की होंडा सिटी खड़ी है, आपके पीछे भी खड़ी है। एंड यू स्टार्ट वंडरिंग व्हाट्स हैपनिंग, सब लोग एक ही कार चला रहे हैं। लेकिन एक्चुअली आपको क्या लगता है, ये कार्स आपके लिए आई थी वहाँ पे? ये कार्स ऑलरेडी थी। जिस दिन आपने डिसाइड कर लिया कि आपको होंडा सिटी चाहिए सिल्वर कलर की, उस दिन आपको वो सारी चीज़ें नज़र आने लगी, राइट? इसी तरह समझो आपके पूरे फैमिली ने डिसाइड कर लिया कि आपको सिंगापुर जाना है घूमने। तो मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ कि अगर आप न्यूज़पेपर खोलोगे तो आपको सिंगापुर के पैकेजेस दिखेंगे। अगर आप टीवी ऑन करोगे तो भी आपको सिंगापुर का वो लायन दिखेगा, मरलियन दिखेगा। अगर आप रोड पे जाओगे, ट्रैवल करोगे, तो वहाँ पे सिंगापुर पे बैनर्स दिखेंगे। यू विल सी दैट एवरीवेयर and you will be shocked, my god, I'm seeing Singapore everywhere. But this is what happens. This is what happens when you become crystal clear of what you want. जब आपको एक पर्टिकुलर मोबाइल खरीदना है कि यही मॉडल खरीदना है, समझो कि आपको, अभी मुझे ज़्यादा मॉडल्स पता नहीं है, आप सपोज एक एप्पल का 8S या 9S, whatever is the latest model, you want to buy that. जैसे आप डिसाइड करते हो तो आप देखते हो कितने सारे लोगों के हाथ में वही मोबाइल है, या फिर शॉप में जाओगे तो पहले वही मोबाइल दिखाई देता है। दिस इज नोन एज क्लैरिटी ऑफ गोल्स। सो बीइंग क्रिस्टल क्लियर ऑफ व्हाट यू वांट इन योर लाइफ इज सो इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जैसे ही आप क्लियर हो जाते हो, आप उसके सारी कनेक्टेड चीज़ें आपको दिखने लगती है, और वो सारी चीज़ें आप आकर्षित करते हो अपने जीवन में। आपका जीनिया आपको इंस्पायर करता है एक्शन लेने के लिए, और इस तरह से आप अपने सारे गोल्स को अचीव कर सकते हो। कितने सारे बच्चे हैं जो इस क्लासेस को करते हैं हमारे, उससे उनके परसेंटेजेस बढ़ जाते हैं। मैंने देखा है कि बच्चों का परसेंटेज का जो इंक्रीज़ है, दैट हैपन्स बिटवीन 10 to 40%। मैंने एक बच्चा को देखा था, ही इंक्रीज हिज स्कोर्स बाय 40% जस्ट बाय फॉलोइंग द माइंड पावर टेक्निक्स। ओके, सो बीइंग क्रिस्टल क्लियर ऑफ व्हाट यू वांट, यूजिंग द माइंड, डेवलपिंग द कॉन्फिडेंस, हैविंग द बिलीफ दैट यू कैन अचीव इट, वर्किंग हार्ड, and putting all these parameters together, you can literally achieve any goal. There is no problem at all. You can definitely achieve goal. अगर ये पॉसिबल नहीं था तो कोई भी इंसान इस दुनिया में गोल अचीव नहीं कर पाता। आप सोचिए, महात्मा गांधी जी का गोल क्या था जब उनको ट्रेन से धक्का मार के बाहर फेंक दिया गया था? He had only one goal, that I want to help India get freedom. तो उस समय तो सबको सपना लग रहा था। देखो ये कीर्ति गावड़े क्या कह रहे हैं कि उन्होंने एक्सपीरियंस किया है कार के बारे में। एवरीवेयर वी यूज्ड टू सी द सेम ड्रीम कार एंड विद इन 6 months वी बॉट इट। या सो कीर्ति जी कह रहे हैं, सी देयर सो मेनी पीपल हु हैव एक्सपीरियंस दीज थिंग्स फ्रॉम आवर वर्कशॉप्स। ओके, सो बड़े बड़े गोल्स लोग कैसे अचीव करते हैं? इट इज़ बिकॉज देव अंडरस्टूड एंड डिस्कवर्ड द पावर ऑफ देयर सबकॉन्शियस माइंड। लेकिन कोई भी गोल को अचीव करने का पहला स्टेप इज़ टू बिकम वेरी वेरी क्लियर ऑफ व्हाट यू वांट। ओके, तो मैंने आपको 2 स्टेप्स बताए। सबसे पहले आप सारे एरियाज़ में क्या चाहते हो लिख लो, डिटेल में लिखो, डिटेल में, और उसके बाद आप अपने गोल्स को सेट करो। ओके, सबसे पहला मैंने जो पैरामीटर बताया था गोल सेटिंग में, वो क्या था? गोल्स कैसे होने चाहिए? एक होता है दे नीड टू बी स्मार्ट, दूसरा गोल्स नीड टू बी व्हाट? Let me see who remembers. Goals need to be hello Archana ji, hello Devdat ji. I'm just waiting for some answers. Goals need to be, एक तो गोल्स नीड टू बी स्मार्ट एंड सेकंड इज गोल्स नीड टू बी हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर इट? ओके, स्नेह जायसवाल had a goal that he wanted to buy an Harley Davidson and he's got it.
Yes, goals need to be crystal clear. They need to be time bound. They need to be attainable. Anita ji says attainable, but you are missing one point. Nilesh ji says bigger goal need to be divided into smaller parts. They need to be time bound, clear. पांडुरंग जी says crystal clear. रजनी says attainable. तो वो तो मैंने आपको कहा goals need to be smart, लेकिन goals also need to be what? Balanced. Congratulations प्रीति जी, I think you got it right. Goals need to be balanced. तो हमें लाइफ के हर एरिया में गोल्स होने ज़रूरी है. देखो हमारे स्मार्ट गोल्स है, लेकिन अगर वो गोल्स सिर्फ पर्टिकुलर एरियाज़ में फोकस्ड है और आपने बाकी के एरियाज़ को इग्नोर कर दिए, तो अनफॉर्चुनेटली द गोल्स समवेयर वी डोंट फील द हैप्पीनेस. ओके, सो लेट्स सी व्हाट द टाइम इज. इट्स 8:10:20, so we'll now go into meditation. We'll take this discussion forward as we go through the rest of the days. देखिए हमने 2 वीक्स कैसे सुंदर अच्छी तरीके से we have spent 14 days together. Isn't that amazing? And I hope you've learned a lot of things in these 14 days. Yes, Rajini, balanced is the word. I hope all of you have learned a lot in these 14 days. We have another 7 days to go. And trust me, you will learn a lot of things in the next 7 days. So spread the word, let people learn more and more from these sessions. इन सेशंस को फिर से रिवाइज करिए, क्योंकि सारा मटेरियल्स ऑलरेडी रिकॉर्डेड वीडियोस में है. आई एम गोइंग टू पुट ऑल ऑफ दीज वीडियोस इन यूट्यूब ऑल्सो एट सम पॉइंट, लेकिन फ़िलहाल तो सिर्फ फेसबुक पे है. तो आप ये सारे सेशंस को देखिए, सेशन 1 to सेशन 13, एंड आज का है सेशन 14. And if you want to learn the entire system of learning how to use your mind, the success principles, how to develop courage, how to develop beliefs, how to overcome the internal barriers and all of that, then please do join our workshop which is happening from 9th to 12th of April. परसों मॉर्निंग से शुरू हो रहा है. In fact, we are closing registrations today night. Probably we'll go on till tomorrow morning maximum. एंड अगर आप में से किसी को भी ज्वाइन कर, काफ़ी सारे लोग आप में से कितने लोगों ने ज्वाइन किया है वर्कशॉप को? इज़ देयर एनीबडी इन दिस ग्रुप हु हैज़ जॉइन्ड द वर्कशॉप? इफ एनीबडी एल्स वांट्स टू ज्वाइन, डू कॉन्टैक्ट शाइस्ता. शाइस्ता इज ऑल्सो देयर ऑन द कॉल राइट नाउ. यू कैन टॉक टू हर. देर इज ऑल्सो अ लिंक ऑन द फेसबुक पेज. यू कैन साइन अप फ्रॉम देयर. And you can understand the whole technology, the entire technology which I have learned directly from Jack Canfield. तो मेरे काफ़ी सारे गुरुज हैं, इन सबसे मैंने ये सीखा है. And I'll be happy to share the entire technology with you. अभी हम जो कर रहे हैं इस सेशंस में, these are all in bits and pieces. It's like a jigsaw puzzle. इस सारे puzzle को हमें एक साथ में ला करके we need to make it into a beautiful, how to apply all these things beautifully in your life. Okay? So now let's get ready for meditation. We have about 15 minutes left, so we'll do a quick, short, beautiful meditation. Okay? Yes, Sudarshan ji says I've joined the online workshop. Pradnya ji says yes, I've also joined. Very good, Pradnya ji. Looking forward to see you day after. Birju Parik says she also has done it. I think he has done it. Yes. Yes, a lot of people have joined. Okay? So let's get into meditation. Let's get ready. Sit in the relaxation position. Remember your most important goal. उसको भी आज हम प्रोग्राम करेंगे. Okay, so sit in the relaxation position. Make sure your back is well rested, spine is straight, hands and legs are not crossed. Hands should not be crossed, legs should not be crossed, they should be open. अपने आप को अच्छे से पीछे रेस्ट करो. धीरे से अपनी आंखें बंद करो. एंड स्टार्ट टेकिंग डीप लॉन्ग ब्रेथ्स. लंबी और गहरी सांसें लेना शुरू करें. एंड एज यू स्टार्ट टेकिंग डीप लॉन्ग ब्रेथ्स, you allow yourself to go deeper and deeper and deeper
into relaxation. With every inhale, you take in love, joy, peace, and serenity. And with every exhale, you let go of all the tensions, all the worries, all the anxieties from your system. जैसे आप सांस अंदर लेते हो तो ब्रह्मांड की सारी अच्छाइयाँ आपके अंदर जा रही है, और जैसे ही आप सांस बाहर निकालते हो तो आपके अंदर जो भी तनाव है, जो भी स्ट्रेस है, जो भी चिंताएं है, वो सारी चीज़ें आपको छोड़ के जा रही है, ऐसा महसूस करिए। अपना पूरा ध्यान अपने सांसों की ओर रखें। सांस अंदर जा रही है और सांस बाहर आ रही है। एक गहरी सांस लीजिए और सांस बाहर निकालते हुए आपके दोनों हाथ, दोनों पैर, आपके स्टमक मसल्स, एब्डोमेन मसल्स, आपके चेस्ट मसल्स, आपके बैक के सारे मसल्स, शोल्डर मसल्स, नेक मसल्स और आपके फेस के मसल्स को पूरी तरह से ढीला छोड़ दीजिए। Relax your entire body completely. Visualize that a beautiful wave of relaxation is entering from the top of your head. It's a beautiful relaxation wave which is entering from the top of your head, from your scalp, slowly entering inside. You can feel the cool sensation of this wave passing through your forehead, covering your eyes, covering your temples, your nose. You can feel the coolness, the calmness of this relaxation wave, covering your ears, your lips, your chin area, और नीचे जाते जाते आपके गर्दन को कवर कर रहा है, आपके कंधों को कवर कर रहा है, आपके चेस्ट एरिया को कवर कर रहा है, हैंड्स को कवर कर रहा है, कवरिंग योर एब्डोमेन एरिया एंड कवरिंग योर एंटायर लेग्स. Feel that this wave of relaxation is passing through every single cell of your body. There are 50 trillion, more than 50 trillion cells in your body. Feel that the wave of relaxation is passing through every single cell and calming down every single cell of your body. आपका पूरा शरीर सिर से लेके पांव तक अब रिलैक्स हो चुका है. You may gently scan your entire body. आपके पूरे शरीर को स्कैन करिए, और अगर आपको लगता है कि कहीं पे और थोड़ा सा टेंशन बचा है तो उस पार्ट पे ऊपर ध्यान दे करके बोलिए रिलैक्स. Your body is now completely relaxed. In order to relax your mind, I'm now going to count down to 20 to 1. And as I count down from 20 to 1, at the count of 1, your mind will be completely relaxed. 20, 19, 18, 17, going deeper and deeper, 16, 15. With every count, you're going 1,000 times deeper into your subconscious mind. 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1.
You've now reached one of your subconscious mind. आप अपने अर्ध जागृत मन की एक सबसे गहरी अवस्था में पहुंच चुके हो। इस समय आपका शरीर और आपका मन दोनों ही पूरी तरह से रिलैक्स हो चुके हैं। You may now transport yourself to one of the most beautiful places on planet Earth. अपने आप को एक बहुत ही सुंदर जगह में ट्रांसपोर्ट कर लीजिए, और जैसे ही आप उस सुंदर जगह में पहुंचते हो तो आपका मन पूरी तरह से शांत हो जाता है। आप उस जगह को पूरी तरह से महसूस करिए। फील द कूल ब्रीज ऑन योर फेस, द वार्मथ ऑफ द सनलाइट, द बर्ड्स चर्पिंग इन द स्काई, the sound of the waterfall, the beautiful fragrance of the flowers around you. और जैसे आप इस पूरी जगह को पूरी तरह से महसूस करते हैं, your mind becomes more and more peaceful. You are now in the alpha state of mind. The alpha state of mind is a highly beneficial state of mind. You are connected directly with your subconscious mind and you have access to the infinite intelligence that exists within you. Whatever you visualize and affirm in this state of mind comes to physical reality in your life. इस अवस्था में आप अपने मन में जो भी मनोचित्रण करते हो और जो भी स्वसूचन देते हो अपने आप को, वो चीज़ आपके जीवन में सच बनकर ही रहती है। इसलिए इस मेडिटेशन में हम कलेक्टिवली एक ही विजुलाइजेशन करते हैं कि हमारी दुनिया जो है वो फिर से नॉर्मल अवस्था में आ चुकी है। और अगर हम इस पूरे विश्वास के साथ में इस गोल को हमारे सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्राम करते हैं तो एक ना एक दिन वो ज़रूर सच होना ही होना है। So now, while you are in the deep alpha state of mind, visualize that you can see your own God right there in front of you, and you're expressing your deepest gratitude. You're thankful to God for whatever He has given you in your life. Remember, gratitude is one of the highest vibrations in the universe. पूरी सृष्टि में अगर एक सबसे हाई वाइब्रेशन है तो वो है ग्रैटिट्यूड का वाइब्रेशन। तो हमारे परमात्मा को आपके परमात्मा को कहना है कि थैंक यू सो मच गॉड फॉर एवरीथिंग दैट यू गिवन मी इन माय लाइफ। सबसे पहले तो आज का दिन तूने मुझे दिया। आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर माई बॉडी एंड माई माइंड, जिससे कि मैं अपने काम को कर पा रहा हूँ, इस जीवन को मैं एक्सपीरियंस कर पा रहा हूँ। Thank you for all my life experiences, all my talents, abilities, this opportunity to make a difference to other people's lives. Thank you for all the people in my life, starting from my parents to my teachers, gurus, my own beloved family members, my spouse, children who add so much meaning to my life, and all the other people who are there in my life. My team members, my office staff, my colleagues, जितने भी लोग मेरे जीवन में आए उसके लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हर इंसान को हम थैंक यू इसलिए कहते हैं क्योंकि हर इंसान जो हमारे लाइफ में आया है वो कोई ना कोई मकसद से आया है, उस कुछ ना कुछ हमें सिखाने के लिए आया है। थैंक यू सो मच गॉड फॉर ऑल द अबंडेंस इन माई लाइफ। जितना भी तूने मुझे दिया है प्रॉस्पेरिटी, उस सब के लिए थैंक यू सो मच। सबसे पहले अबंडेंस इन फूड, वाटर, एयर, ऑल द नेचुरल एलिमेंट्स ऑफ लाइफ, बर्ड्स, एनिमल्स, ट्रीज, फ्लावर्स, फ्रूट्स, माउंटेन्स, सन, मून, ये सारी चीज़ें अबंडेंस में है। थैंक यू सो मच फॉर माई हाउस, my home, which brings in so much of safety and security to my family, to my office, to the car, to all the other prosperity that is there in my life. Thank you, thank you, thank you.
एक्सप्रेस योर डीपेस्ट ग्रैटिट्यूड टू गॉड। याद रखिए, इसमें से एक भी चीज़ अगर मिसिंग होती है तब हमें उस चीज़ की वैल्यू पता चलती है। इसलिए हर चीज़ के लिए ग्रेटफुल होना बहुत ज़रूरी है। एक छोटा सा दांत भी अगर, इवन इफ वन ऑफ योर टूथ इज पेनिंग, वी स्टार्ट रियलाइजिंग व्हाट इज द वैल्यू ऑफ हैविंग हेल्दी टीथ। तो हर चीज़ को ग्रेटफुल रहना बहुत ज़रूरी है। नाउ वी आर सीकिंग फॉरगिवनेस फ्रॉम गॉड। दैट डियर गॉड, अगर मुझसे कुछ भी गलती हुई हो, किसी को मैंने हर्ट किया हो, अगर मदर नेचर को मैंने हर्ट किया हो, जाने अनजाने, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, इस जन्म में या पिछले कोई भी जन्म में अगर मैंने किसी को भी हर्ट किया हो या मदर नेचर को हर्ट किया हो मेरे थॉट्स, वर्ड्स एंड डीड्स के द्वारा, अगर मैंने किसी को भी हर्ट किया हो तो प्लीज़ फॉरगिव मी, प्लीज़ 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 फॉरगिव मी। क्योंकि मुझे पता है कि आज मेरे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, अगर मेरे लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो इट इज़ ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ सम ऑफ माई पास्ट कर्मास। तो प्लीज़ फॉरगिव मी एंड रिलीज मी फ्रॉम दोज कर्मास। तो विजुलाइज करिए कि गॉड इज़ वेरी ग्रेसफुल। तो उनके तरफ से एक ब्यूटिफुल वाइट शाइनिंग लाइट आ रही है which is covering all the 7 billion people on the planet. सारे ह्यूमन बीइंग, सारे एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, सबको कवर कर रहा है। इट इज़ इन फैक्ट कवरिंग द एंटायर प्लानट अर्थ। ये ब्यूटिफुल वाइट शाइनिंग लाइट महसूस करिए कि आपको भी कवर कर रही है। एंड इट इज़ क्लियरिंग ऑल दोज पास्ट कर्मास, पूरा वॉश आउट कर रही है उसको। The divine, beautiful, healing white light is so powerful that it is washing away all our karmas which are creating any problem in our life today. And this is happening for all the 7 billion people. And visualize that all those karmas which are washed away are going into the black hole of the universe. और साथ साथ में ये भी महसूस करिए कि कोरोना वायरस is getting completely dissolved in this beautiful white shining light, and it is becoming one with this light, and it is no longer harmful to anybody anymore. So you can visualize that the entire earth is now protected, and you're very grateful to God for His grace and for His mercy. महसूस करिए कि आपके अंदर से भी वो सारे कर्मास जो आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, वो सारे कर्मास वॉश आउट होके गए हैं, ऑलरेडी चले गए, एंड यू आर कंप्लीटली फ्री ऑफ दोज कर्मास, एंड यू वेरी थैंकफुल टू गॉड। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गॉड फॉर योर ग्रेस एंड योर मर्सी। नाउ सेंड आउट योर हीलिंग एनर्जी एंड योर लव to all those people who are working so hard, दिन रात मेहनत कर रहे हैं ताकि हम घर पे चैन से बैठ सके। वो सारे डॉक्टर्स, वो सारी नर्सेस जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, सारा स्टाफ जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं हॉस्पिटल्स में, क्लिनिक्स में, जहाँ जहाँ पे भी ये ट्रीटमेंट्स हो रहे हैं, सारे लोगों को हीलिंग एनर्जी भेजिए, स्ट्रेंथ भेजिए, करेज भेजिए, फेथ भेजिए, so that they can do their duties and they also feel good, they are also completely healed. Send this healing energy to all those people who are affected. Visualize करिए कि healing energy वो सारे affected लोगों को भी ठीक कर रही है। And also send this beautiful healing energy to those people, उन सबको भेजिए जिनका कोई ना कोई आसपास का इंसान गुजर गया हो इस पूरे एपिसोड में। Send your loving healing energy to all those people who have lost their loved ones. Visualize करें कि वो भी हील हो चुके हैं,
एंड पीपल हु हैव पास्ड ऑन, उनके सोल्स भी हील हो चुके हैं. Wonderful. Thank you to all those people who are making sure that we are receiving all our daily essentials. Thank you, thank you, thank you. Now, I will give you 1 minute to visualize your most important goal. आपका जो भी सबसे इम्पोर्टेंट गोल है उसको विजुलाइज करिए जैसे कि वो सच हो रहा है, आपके सामने सच हो रहा है. जब भी आप अपने गोल को विजुलाइज करते हो तो ऐसा विजुलाइज करना है जैसे कि वो आपके सामने सच हो रहा है, होने वाला है नहीं, हो रहा है. एंड बिकॉज योर गोल हैज़ बिकम ट्रू, यू आर फीलिंग वेरी हैप्पी, very joyful, and you're very grateful to God कि आपका ये सपना आज पूरा हुआ है. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच गॉड. उसको मन में विजुलाइज करिए, उसको फील करिए. आसपास के लोग आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस कह रहे हैं, हैंडशेक्स कर रहे हैं, गले लग रहे, और आप बहुत खुश हो कि आपका ये गोल अचीव हो चुका है. एंड यू वेरी ग्रेटफुल टू गॉड दैट आज आपको वो बड़ा सपना पूरा हुआ है. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. एंड नाउ वी आर गोइंग टू विजुलाइज that our world is coming back to normal. जैसे आप सुबह उठते हो तो आप देखते हो कि there is a different vibration you can feel. न्यूज़पेपर आप पढ़ते हो तो उसमें लिखा है that finally the world is back to normal. Corona virus is completely gone. तो जब आप ये हेडलाइंस पूरे वो बड़े वर्ड्स में सुनते हो तो यू बिकम सो एक्सटेटिक, यू बिकम हैप्पी, यू जॉयफुल, डांस कर रहे हो आप, आपके सारे फैमिली मेम्बर्स डांस कर रहे हैं. दे आर सो हैप्पी कि फाइनली वी हैव बीन एबल टू सेल थ्रू दिस डिफ़िकल्ट टाइम्स, और इसको हमने अच्छे से पार किया और सारे फैमिली मेम्बर्स सेफ है, दे आर सिक्योर, दे आर सेफ, दे आर हेल्दी, दे आर फिट. You are also feeling fit and healthy. और आप देखते हो कि आपके आसपास के जितने भी सोसाइटी में लोग हैं, सारे लोग दे whistling, there's whistles and bells and थालीस को आवाज़ आ रही है, इतना सारा आवाज़ हो रहा है, सब लोग इतने खुश है कि the world is back to normal. ये सारे लोगों को देख के आपको इतनी खुशी होती है and you're very very grateful to God that the world is indeed back to normal. और जैसे आप घर से बाहर निकलते हो तो आप देखते हो रास्ते पे वही एक्टिविटीज़ है, अभी बज़ है, द एनर्जी इज़ देयर, द वाइब्रेंसी इज़ देयर. पूरे वाइब्रेशंस को आप फील कर पा रहे हो एंड यू वेरी ग्रेटफुल टू गॉड. ऑल द कंप्लेंट्स हैव गॉन अवे. पहले बहुत कंप्लेंट था, ट्रैफिक है, ये है, वो प्रॉब्लम है, ऐसा प्रॉब्लम है, पोल्यूशन है. अब वो सारे प्रॉब्लम चले गए बिकॉज यू वेरी ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग इन लाइफ. और आप देखते हो कि हर इंसान जो आपको मिलता है, एवरीबडी इज़ वेरी ग्रेटफुल, एवरीबडी इज़ इन अ वांटिंग टू हेल्प अदर पीपल. देयर इज़ अ लॉट ऑफ लव, कंपैशन, जॉय. और आप देख रहे हो कि पूरा बदलाव आ गया माहौल में, वाइब्रेशन में, एनर्जी में. हर इंसान की एनर्जी में बदलाव आ रहा है और आप बहुत खुश हो कि हमारी दुनिया एक सतयुग की ओर जा रही है. इट्स गोइंग बैक टू what it was originally created by the creator. And you are very thankful and grateful to God कि भले ही इतनी तकलीफ़ के पार हमें जाना पड़ा, लेकिन उसके बाद the world has emerged to be a much more beautiful place to live in. A world which is full of joy, love, compassion, wanting to help one another. And आप आकाश की ओर देख करके looking at the sky and thanking God. Thank you, thank you, thank you God for all your blessings.
and for making this world such a beautiful world, full of love, joy, compassion. एक दूसरे को मदद कर रहे हैं. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. और आपके मन में आप पूरे वो फीलिंग को फील कर पा रहे हो. देयर इज अ फीलिंग ऑफ पीस, देयर इज अ फीलिंग ऑफ काम, देयर इज अ फीलिंग ऑफ फुलफिलमेंट, ऑफ जॉय, ऑफ हैप्पीनेस. क्योंकि आप हमारी दुनिया फिर से नॉर्मल हो चुकी है एंड इट इज नाउ कंप्लीटली सेफ एंड प्रोटेक्टेड. मन में कुछ एफर्मेशंस बोलेंगे. आई एम ऑलवेज सेफ एंड डिवाइनली प्रोटेक्टेड. माई फैमिली इज ऑलवेज सेफ एंड डिवाइनली प्रोटेक्टेड. द एंटायर वर्ल्ड इज ऑलवेज सेफ and divinely protected. My body is always fit and healthy. My immune system is working perfectly and I have very high immunity. I am calm and relaxed in every situation. I have complete faith that the world is now coming back to normal. And I have complete faith that we will emerge to be a much more better world, a world which is filled with love, joy, peace, compassion, and a feeling for helping one another live a beautiful life. Very good. And you're very grateful and thankful to God for all of this. Now I'm going to count up from 1 to 10. मैं 1 से 10 की गिनती करूँगा और जैसे मैं गिनती करूँगा तो आप धीरे धीरे अल्फा स्टेट में से बाहर आओगे. और जैसे आप 10 की गिनती पे पहुँचोगे और आप अपनी आंखें खोलोगे तो आप महसूस करोगे कि आप पूरी तरह से फ्रेश हो, फीलिंग पीसफुल, फीलिंग काम, completely joyful and ready to go to sleep like a little baby. Wonderful. So starting with 1, धीरे धीरे बाहर आना शुरू करिए. 2, 3, 4, 5, coming out slowly. 6, 7, 8, 9. प्लीज रब बोथ योर पाम्स टुगेदर. दोनों हाथों को रब करिए. पुट देम ऑन योर आईज. फील द वार्मथ ऑफ द palms on your eyes. And 10. Now slowly take your hands off your eyes. And whenever you're ready, जब भी आप रेडी हो तो धीरे से अपनी आंखें खोलिए. And as you open your eyes, you are wide awake, you are fully relaxed, you're completely refreshed, feeling calm, feeling peaceful, feeling healthy, happy, joyful, and ready to take a beautiful night's sleep. So thank you everybody, thank you, thank you, thank you for being here once again this evening. We come to the end of the day 14 session. Thank you Ram Krishna. तो आज अपने कमेंट्स में लिखिए कि आज आपने क्या सीखा. What have you learnt in goal setting? गोल्स कैसे होने चाहिए, विजन कैसे लिखोगे. प्लीज़ राइट डाउन whatever you've learnt. और आप promise to yourself, make a promise today that I'm going to clarify my goals. ये लॉकडाउन के टाइम पीरियड I'm going to use it effectively. So Joy is saying thank you, Anita ji is saying thank you so much, Dinesh Mishra is saying thank you. कैसा लग रहा है everybody? How is everybody feeling? Munira is saying feeling peaceful.
Sandeep ji says feeling grateful. Ramesh says many thanks. Ritu says feeling very positive. Yes, Sushmito ji, feeling good night. Thank you, Shaista. Thank you, Padma ji. She says very nice experience. Shweta says feeling so relaxed. Thank you so much, sir. Kirti says feeling completely calm and relaxed. Somebody says we understood the entire framework for creating goals. Ranjit ji says thank you so much for this wonderful session. Dinesh ji says as if feeling as if I am in the live session. Awesome. Thank you guys. Thank you very much. Wish you all the best. And I will see you tomorrow for day 15 at 9:30 sharp. And whoever wishes to join the workshop, this is the last call for that. You may register yourself tomorrow morning or you can register even today. Thank you so much. Goodbye. Bye-bye. Have a good night. Bye-bye. Anita ji says balance goals. Sneh says recharged and grateful. Nilesh ji says feeling wonderful, feeling calm. Vipin ji says thank you sir, great experience and learning. Chandresh ji says relaxed and calm. Pooja ji says feeling divine. Sudarshan ji says the meditation gives us peace. Awesome. Thank you so much, guys. Wish you all the best. And I will let you to go to sleep now. Thank you, thank you, thank you. Bye-bye, Munira. Bye-bye. Thank you so much, Joy. Thank you, Sanjeev ji. Good night, Dinesh ji.